فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ دہلی شراب اسکیم کے سلسلے میں ای ڈی اور سی بی آئی معاملات میں دہلی کے روز ایونیو کورٹ نے BRS کی رکن خانساز کونسل کے کویتا کی ضمانت منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ سی بی آئی اور ای ڈی کے خصوصی جج کاویری باویجا نے کویتا کی درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ راحت دینے کا مرحلہ درست نہیں ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کویتا 46 سالہ کو 15 مارچ کو حیدرآباد میں ان کی بنجارہ ہلز رہائش گاہ سے گرفتار کیا تھا اور وہ اس معاملے میں عدالتی تحویل میں تھیں۔ بعد میں مرکزی تفتیشی بیورو نے بھارتیہ راشٹر سمیتی BRS کے رہنما کو عدالتی حراست سے گرفتار کر لیا۔ تلنگانہ کے ضلع کھمم میں بے موسم بارش اور تیز ہواؤں کے سبب 50 سے زائد بجلی کے کھمبے گر گئے۔ 9 علاقوں میں ٹرانسفارمرز اور فیڈرز کو نقصان پہنچا۔ پنڈلا پلی میں بجلی کا ایک ٹاور گر گیا جس کی وجہ سے کئی دیہاتوں میں بجلی کی سپلائی بند ہو گئی۔ چنتکانی اور ناگولا ونچا میں بجلی کی بحالی کا کام جاری رہا۔ اسی دوران محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 5 دنوں تک ریاست کے مختلف حصوں میں ہلکی اوسطاً بارش کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں مختلف اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ دوسری جانب بعض اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا۔ گزشتہ شب بھدرادری، کوتاگوڑم، کھمم، سوریہ پیٹ اور ناگر کرنول اضلاع میں بارش ہوئی تھی۔ عادل آباد، آصف آباد، منچریال، نرمل، جگتیال، راجنا سرسلہ، کریم نگر، پیدہ پلی اور جوگلامبا گدوال اضلاع میں ژالہ باری ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے کہا منگل کو سدی پیٹ، یدادری، بھونگیر، رنگا ریڈی، وقار اور محبوب نگر اضلاع میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش ہو رہی۔ تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج نے حیدرآباد میں آل سینٹس ہائی اسکول میں قائم پوسٹل بیلٹ ووٹر سینٹر میں اسٹرانگ روم ڈیٹا انٹری پوسٹل بیلٹ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے تحفظ کے لیے ہر ایک کو اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پوسٹل بیلٹ ووٹنگ 3 سے 8 مئی تک الیکشن ڈیوٹی پر مامور ملازمین کے لیے کی جا رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ EVM کی رینڈمائزیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ضلع الیکشن آفیسرز کو ہدایت کی گئی کہ تمام پولنگ مراکز میں پینے کے پانی، شیڈز، میڈیکل ٹیمیں، شامیانہ اور ORS پیکٹ جیسی سہولیات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ 50% سے زیادہ ہوم ووٹنگ مکمل ہو چکی ہے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر GHMC کمشنر رونالڈ روس نے کہا کہ ضلع میں پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر گھر گھر ووٹنگ مہم اسی طرح جاری رہے گی جس طرح کنٹونمنٹ اسمبلی ضمنی انتخابات کے دوران سہولت مراکز قائم کیے گئے تھے۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سری دھر بابو نے امید ظاہر کی ہے کہ کانگریس پارٹی آندھرا پردیش میں بھی نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پڑوسی ریاست میں انتخابی مہم شدت کے ساتھ جاری ہے۔ ہماری قیادت نے اس مرتبہ کانگریس کے سینئر لیڈروں کو امیدوار کے طور پر اتارا ہے۔ کانگریس پارٹی کی قیادت پر بھروسے سے یقینی طور پر ہمارے لیے بہتر نتائج سامنے آئیں گے کیونکہ ہر کوئی تبدیلی چاہتا ہے اور تبدیلی ضرورت بن گئی ہے۔ متحدہ آندھرا پردیش کی تقسیم کے بعد تلگو دیشم پارٹی نے تقریباً 5 سال تک اس ریاست پر حکومت کی تھی۔ بعد ازاں عوام نے YSR کانگریس کو خط اعتماد دیا۔ یہ دونوں جماعتیں تقریباً 10 برس تک برسر اقتدار تھی۔ عوام کا یہ احساس ہے کہ ریاست کی بہبود اور ترقی کو نظر انداز کیا گیا۔ عوام کو یہ بھی بھروسہ ہے کہ کانگریس جو بھی کہے گی اس پر یقینی طور پر عمل کرے گی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ہمیشہ سے ہی ایجوکیشن اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو بہتر بنانے پر کافی زور دیا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی سے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے چنچل گوڑہ علاقے میں گورنمنٹ جونیئر کالج اور ڈگری کالج کا قیام عمل میں لایا جا رہا جس کی لاگت 10 کروڑ روپے ہے تاکہ مستحق افراد کے بچے اپنی پڑھائی مکمل کر سکیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہوئے اعلیٰ مقام پر جا سکیں۔
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाया जा रहा है जिसकी लागत 10 करोड़ रुपए है ताकि इस कॉलेज के जरिए बच्चों के सुनहरे ख्वाब पूरे हो सकें। चंचलगुड़े में बन रहा ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अपने आखिरी मरहले में है जिसमें जल्द ही पढ़ाई शुरू हो जाएगी। वहीं गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में तेजी के साथ काम जारी है जो जल्द ही पूरा हो जाएगा और यहाँ एक ही कैंपस में यूजी से लेकर पीजी तक के तुलबा तालीम हासिल कर सकेंगे और तुलबा को हायर एजुकेशन के लिए दूर दराज के इलाकों का सफर नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मलकपेट असेंबली हलके की इस तरक्की को बरकरार रखने के लिए और इसको मजीद तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर से पतंग के निशान पर वोट डालकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के नुमाइंदों ने हल्का असम्बली मलकपेट में 5 करोड़ रुपए के खर्च कर पार्क्स को बेहतर व खूबसूरत बना दिया है और इन्हीं पार्क्स में से एक पार्क अफजल नगर का सालार मिल्लत पार्क है जो फैमिली पार्क है। इलाके में इस तरह के पार्क्स बनने से आवाम में काफ़ी खुशी है। उनका कहना है कि वो छुट्टी के वक्त में अपने बच्चों के साथ यहाँ आ जाते हैं और उनके साथ एक अच्छा वक्त गुजारते हैं। अफजल नगर का सालार मिल्लत पार्क एक फैमिली पार्क भी है जहाँ लोग अपने बच्चों के साथ सुबह शाम सैर व तफरी करने के लिए आते हैं और यहाँ की खुली फिजा में ताज़ी हवा से लुत्फानंदोज होते हैं। पार्क के मैदानी हिस्से में नौजवान और बच्चे मुख्तलिफ खेल कूद की सरगर्मियाँ भी अंजाम देते रहते हैं। इसके अलावा पार्क में आने वालों के लिए वर्जिश का भी खास इंतजाम किया गया है। पार्क में वर्जिश करने के लिए कई बेहतरीन और जदीद तर्ज की मशीनें लगाई गई हैं जिसका लोग कसरत से इस्तेमाल करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है कि इस तरह के पार्क हर इलाके और हर कॉलोनी में होने चाहिए ताकि अवाम बिलखुसूस बच्चे, बुजुर्ग और मरीज अफराद खुली और साफ सुथरी फिजा में सांस ले सके। मजलिस ने हमेशा अवाम के फलाह बहबूद को तरजीह दी है, इसलिए मलकपेट की इस तरक्की को बरकरार रखने के लिए और इसको मजीद तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए एक बार फिर से पतंग के निशान पर वोट डालकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाएं। तेलंगाना में पार्लियामेंट इंतखाबात में किस्मत आजमाई कर रहे 524 उम्मीदवारों में से तकरीबन 20% यानी 104 उम्मीदवारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज हैं। 16% उम्मीदवारों यानी कि 85 उम्मीदवारों के खिलाफ संगीन नौयत के फौजदारी मुकदमात दर्ज हैं। तकरीबन 21% उम्मीदवार यानी 109 उम्मीदवार करोड़पति हैं। लोकसभा इंतखाबात 2024 मरहला 4 के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब में सियासी जमातों पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का कोई असर नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने फिर से ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने की अपनी पुरानी रिवायत को बरकरार रखा जिनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2020 को अपनी हिदायत में सियासी जमातों से खास तौर पर कहा था कि वो इस तरह के इंतखाब की वजूहात बताएं और वजाहत करें कि मुजरिमाना सरगर्मियों से दूर लोगों को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा क्यों नहीं किया जा सकता। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर कारवान असम्बली हल्के के गोलकुंडा में वाक़ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 75 लाख रुपए की लागत से बुनियादी सहूलियात फराहम कराए ताकि स्टूडेंट्स का सुनहरा ख्वाब पूरा हो सके। ट्यूशन की सूरत हाल को बेहतर बनाने पर काफी जोर दिया ताकि मुल्क का फ्यूचर रोशन हो सके। मजलिस की नुमाइंदगी से कारवान असेंबली हल्के के गोलकुंडा इलाके के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में तकरीबन 75 लाख रुपए की लागत से बेसिक फैसिलिटीज फराहम कराई गई है ताकि इस कॉलेज के जरिए बच्चों के सुनहरे ख्वाब पूरे हो सके। The MP Barrister Asaduddin Sahab for providing us this campus here so that we people can able to fulfill our dreams, our destinations, our goals by keeping here in the boundaries of the Golconda. Thank you so much. मजलिस का ख्याल है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में बेसिक फैसिलिटीज होने से हैदराबाद शहर की आवाम अपने बच्चों के ख्वाबों को पूरा कर सकेगी और यहाँ की लिटरेसी रेट में इजाफा होगा। गोलकुंडा इलाके के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हजारों तुलबा तालीम हासिल कर रहे हैं और यहाँ पर काबिल टीचर्स की निगरानी में तुलबा को तालीम दी जा रही है। इस कॉलेज में हर तरीके के बेसिक फैसिलिटीज हैं और यहाँ तालीम हासिल करने वाले तुलबा को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए शहर में लिटरेसी रेट बढ़ाने और अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के वास्ते इस बार पतंग के निशान पे वोट डाल के AIMIM को कामयाब बनाएं।
तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट के हसनाबाद के बीजेपी इंचार्ज बी श्री राम चक्रवर्ती ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। उनके साथ उनके हामी भी मौजूद थे। उन्होंने वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की मौजूदगी में जुबली हिल्स में वजीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आला ने उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाया और उनका कांग्रेस पार्टी में इस्तकबाल किया। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings to one and all. On behalf of management of Success Group of School, I Fat Fatima, principal of Purani Haveli branch, happy to share the exciting news that Purani Haveli branch will now be all girls branch. I cordially invite you all to join for grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus on May 5th. अपनी मजबूत आवाज को पार्लियामेंट तक फिर से पहुंचाने के लिए 13 मई के दिन ईवीएम का पहला नंबर पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिसी सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और हैदराबाद पार्लिमानी हलके के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कामयाब बनाएं और मजलिस के हाथ मजबूत करें ताकि शहर हैदराबाद में मजीद तरक्की की जा सके और अमन व अमान को बरकरार रखा जा सके। मशीन के ऊपर जो पहला नंबर होगा वो पतंग के निशान का होगा। आप पहले नंबर के ऊपर आप पतंग के निशान पर बटन दबाइए। पतंग 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 इस बार भी जीत रहे देखो अपन। पतंग 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 बिरयानी स्पेशल खाते अपन। पतंग 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 ईरानी चाय ही पीते अपन। पतंग 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 बम के साथ ही रहते अपन। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में बरसरे इख्तिदार होने की सूरत में मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन देने का ऐलान कर दिया है। टीडीपी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल है और मुस्लिम कोटे से मुतल्लिक इसके ऐलान से बीजेपी की मुश्किलात बढ़ गई हैं। टीडीपी ने यह ऐलान रियासत की मुस्लिम अक्सरियत वाली 40 से 50 असम्बली सीटों पर मुसलमानों के वोटों को हासिल करने की हिकमत अमली के तहत किया है, मगर इस ऐलान से बीजेपी की मुश्किलात में इजाफा हो गया। वाज़ेह है कि एनडीए में शामिल कई इलाकाई पार्टियां लोकसभा इंतखाबात के दौरान बीजेपी की मुश्किलात बढ़ा रही हैं। कर्नाटक में पार्टी अपनी हलीफ जेडीएस लीडरों प्रज्वल रेवन्ना और उनके वालिद एचडी रेवन्ना के जिनसी स्कैंडल से खुद को बचाने की कोशिशों में मसरूफ है। इस मामले में अभी इसकी मुश्किलात बरकरार रही हैं कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने ओबीसी रिजर्वेशन में मुस्लिम कोटे की हिमायत करके उसे मजीद एक इम्तिहान में डाल दिया। वाज़ेह है कि मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी ऑपोजिशन पर हमला आवर है और उसे ओबीसी के हुकूक को छीना करार दे रही। कोविड-19 की नई शक्ल FLIRT जो अमेरिका में तेजी से फैल रही है, मदाफियाती निज़ाम से बच निकलने की अहल है। ये ओमिक्रॉन JN1 से ताल्लुक़ रखती है और बरतानिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड और जनूबी कोरिया में तेजी से फैल रही है। डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन CK बिरला हॉस्पिटल दिल्ली राजीव गुप्ता ने ये बात बताई। उन्होंने कहा है कि इस वेरिएंट के बायस इन ममालिक में दवाखानों में शरीक होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ, ताहम ये निस्बतन छोटी लहर है, मजमूई तौर पर अमवात में इजाफा नहीं हुआ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर गहरी नज़र रखने का मशवरा दिया और सर गंगाराम हॉस्पिटल में पेडियाट्रिक इंटरवेनिस्ट धैर्यन गुप्ता के मुताबिक कोविड-19 की नई शक्लें आती रहेंगी। नई शक्ल में अलामात ओमिक्रॉन की दीगर अशकाल जैसे ही हैं, यानी गले में खराश, खांसी, थकन, नाक से पानी बहना, सर दर्द, बुखार, मुंह का मजा बदल जाना वगैरह शामिल है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత
నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.